Hello everyone and welcome back to Dune Officers Academy. We were covering the topic noun and so far we have covered one type of classification which is the kinds of noun. And now we are going to learn about noun and in that we are going to learn about the number noun. Right? तो आज का जो हम noun में topic cover कर रहे हैं that is a number noun. Now, based on number or based on your ability to count a particular noun, we classify noun. Right? इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? How do we classify kinds of noun? There we have learned 5 types of noun. क्या एक पर्टिकुलर टर्म है दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द काइंड्स ऑफ नाउन. जैसे कि कलेक्टिव की जब हम बात कर रहे हैं, सो इट रेफर्स टू ग्रुप और वन होल. राइट? व्हेन द नंबर ऑफ थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन यूनिट और एज वन होल. कॉमन की बात करिए जब इन जनरल आप किसी एक पर्टिकुलर सेम क्लास या सेम काइंड ऑफ चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हो. राइट? और इफ आई टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट आर द 3 टर्म्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन? दैट वाज क्वालिटी, then it was a state, जैसे कि childhood it is a state, right? Or if I talk about action. Now we are going to learn about number. Now number is a particular thing that we all understand. Now based on your ability to count a particular noun or if you are not able to count a particular noun, आप दो तरीके से noun को categorize करते हो, right? So when you are able to count a particular noun, right, that is known as countable noun. Right? Your ability to count a particular noun is what is known as countable noun. Another is when you are not able to count a noun, right? That is known as uncountable noun. Right? Your ability to count a noun, right? And any particular thing or a person or an animal, when you are able to count it, then that is known as the countable noun. आप अगर उसे गिन सकते हो, right? When you are not able to count it. Now remember when I talk about your ability to count it or when you are not able to count it, here I am not talking or focusing upon the quantity of something. ठीक है? आप किसी की quantity को बिल्कुल नाप सकते हो, लेकिन आपने साइंस में पढ़ा होगा मैटर के बारे में, राइट? और उसी में आप कैटेगराइजेशन करते हो एटम्स की, या फिर आप उसके और अगर पार्टिकल्स के बारे में बात करो, राइट? सो कोई भी एक चीज़ जो है, एनीथिंग विच हैज़ अ मास और वेट, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. इसी तरीके से हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं, राइट? तो हर एक चीज़ जो है वो मैटर से मिल के कुछ बनी है, राइट? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से बुक्स, if there are number of books which are lying over here, right? अगर आपको बहुत सारी बुक्स जो है मैं यहाँ पे रख दूँ, can you count the number of the books? The number of books that are lying over the table, can you count it? आप उसको count कर सकते हो ना? So that is why the name countable. So now we know that book is what? Countable. Countable से क्या मतलब है? When you can exactly tell the total number of things that is lying over the table, right, is what is known as countable noun, right? जब आप exact number बता सकते हो उसका, तब आप उसको क्या बोलते हो? countable noun. Book is what? It is a countable noun, right? अब देखो अगर आप books count कर सकते हो, it can be one book, राइट? उसके आगे एक नंबर लग गया है, स्पेसिफिक नंबर लग गया है, सो दैट इज वाई द नेम काउंटेबल नाउन. एनी पर्टिकुलर थिंग दैट यू कैन काउंट और एनी पर्टिकुलर थिंग दैट यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द नंबर. आप स्पेसिफिक उसकी क्वांटिटी बता सकते हो, राइट? किस टर्म में? नंबर के टर्म में, राइट? कि कितने, जब आप गिन के उनको बता रहे हो कि कितने पर्टिकुलर अमाउंट है वहाँ पे या कितनी चीज़ें हैं वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, समथिंग विच यू कैन काउंट. नाउ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल दैट यू कैन नॉट काउंट, राइट? अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? व्हेन आई टॉक अबाउट इट इज़ नॉट, आप उसकी गणना ही नहीं कर सकते, आप उसको गिन नहीं सकते हो. इसका मतलब क्या है? दैट यू कैन नॉट काउंट इट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मिल्क, a simple example milk, right? if I say milk, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं आपको मिल्क गिन सकती हूँ? यहाँ पे 4 मिल्क हैं. I can count the number of packets. I can definitely count the number of packets of milk. But here I'm only talking about milk. I can measure the quantity, right?
अनकाउंटेबल नाउन में जब मैं मिल्क की बात कर रही हूँ, आई कैन मेजर द क्वांटिटी, कितना एक लीटर मिल्क है, 2 लीटर है, आई कैन मेजर द क्वांटिटी, बट आई कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट नंबर, right? You can always measure the quantity, but you cannot measure the exact number of milk. पर जब इसी को मैं एक पैकेज प्रोडक्ट कर रही हूँ, देयर आई कैन काउंट द पैकेट्स, एंड हियर अगेन आई कैन नॉट काउंट द मिल्क, आई कैन एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर मिल्क क्वांटिटी। इट कैन आपका एक 500 लीटर 500 ml का आपका एक मिल्क का पैकेट हो सकता है, देयर आई एम एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, बट आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिल्क, राइट? सो अनकाउंटेबल सिंपली मीन्स एनी नाउन विच यू कैन नॉट काउंट, कोई भी ऐसा नाउन जिसकी आप गणना नहीं कर सकते हो, वो आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, राइट? किसी को आप गिन सकते हो, नंबर में उसका क्वांटिटी एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज योर काउंटेबल नाउन। किसी चीज़ को आप नहीं गिन सकते हो, आप उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, देन यू कॉल इट एज अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है ना, इफ आई से हनी, अगेन आई कैन मेजर द क्वांटिटी, मैं उसको क्या है, जो आप मेट्रिक सिस्टम आप पढ़ते हो या फिर जो आप यूनिट सिस्टम पढ़ते हो, उसमें मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, है ना, कि आपका क्या है कि 500 आपका 1 लीटर का मिल्क का एक आपका डब्बा है, यू कैन से दैट, अगेन मैं उसको मेट्रिक सिस्टम में एक्सप्रेस कर रही हूँ, राइट? बट आई कैन नॉट काउंट इट, है ना। जो आपका सेमी लिक्विड है आपका हनी, मैं उसको काउंट नहीं कर सकती हूँ, बट उसकी क्वांटिटी मेजर कर सकती हूँ, है ना, 1 लीटर का है, राइट? सिमिलरली शुगर, इट इज रियली नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू काउंट ईच क्यूब ऑफ अ शुगर। वो जो आपके छोटे छोटे आप चीनी देखते हो वो आप नहीं गिन सकते, अगेन, सो दैट इज अनकाउंटेबल। One more thing that you must keep in mind when we talk about countable or uncountable noun, right? Countable can always be made plural. So a countable noun is further categorized as plural or singular based on their ability to count. मैं एक countable noun का singular भी बना सकती हूँ, plural भी बना सकती हूँ, but फॉर अनकाउंटेबल नाउन, जब भी मैं अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रही हूँ, मैं उनका प्यूरल नहीं बना सकती, ठीक है? आई कैन नॉट से मिल्क्स, इट इज रॉन्ग, हनीज नहीं बोल सकती, शुगर्स नहीं बोल सकती, है ना, तो मैं उनका प्यूरल नहीं बना सकती हूँ, ठीक है? सो when I talk about uncountable noun, I cannot make plural of the uncountable noun, but for the countable noun, they can be further made into singular or in plural form. Clear? तो एक नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें अगेन हम एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म उसमें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन काउंटेबल नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन, आई एम अज्यूमिंग इट इज क्लियर नाउ। अब आ जाते हैं प्लूरल और सिंगुलर की बात करते हैं। Now let us talk about singular and plural, ठीक है? नंबर में we are going to talk about singular and plural. Now these are very basic terms, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे आपके। सिंगल का मतलब क्या है? वन। सो व्हेन एनी काउंटेबल नाउन, जब हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जस्ट नाउ वी हैव कम अक्रॉस एग्जाम्पल बुक। Now when I'm talking about only one book, नंबर की हम बात करें ना, when it is only one in number, there I'm going to use the word book. But if it is more than one, वहाँ पे मैं क्या यूज करती हूँ? बुक्स का इस्तेमाल करती हूँ। क्लियर है ये चीज, राइट? सो सिंगुलर when it is only one in number, कोई भी चीज जब सिर्फ एक है, सिंगल है, there we are going, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। बट when it exceeds, right, more than one, we use प्यूरल फॉर इट, ठीक है? कुछ बेसिक रूल्स जो आपको पता होने चाहिए व्हेन वी आर कन्वर्टिंग सिंगुलर इनटू प्यूरल, बहुत, राइट? आई एम नॉट कवरिंग ऑल ऑफ देम, बट कुछ जो थोड़े बहुत रूल्स आपको पता होने चाहिए। एक जो होता है सिंपली बाय एडिंग एस टू इट, राइट? कोई भी एक आपका सिंगुलर वर्ड है, उसमें अगर मैं एस लगा देती हूँ तब मैं उसका प्यूरल बना सकती हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू कन्वर्ट वन सिंगुलर फॉर्म इनटू प्यूरल फॉर्म। सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है उसको सिंगुलर से प्यूरल कन्वर्ट करने का? सिंपली बाय एडिंग एस टू इट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पढ़ लिया ना बुक का,
दिस इज व्हाट सिंगुलर. By adding s, ठीक है. For example, if I say boy, how are you going to make plural? By adding s to it, boys. Similarly, if I say book, by adding s to it, books बन गया ना इसका, ठीक है. So the one way to convert one singular into plural, singular means what? They are one in number. Boy means what? सिर्फ एक लड़के के बारे में बात कर रही हूँ. Similarly, book means what? I'm talking about one book only. But when I'm talking about more than one, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. So there I'm going to use the term books. वन मोर थिंग, प्यूरल डजंट ऑलवेज स्पेसिफिक, प्यूरल कभी भी आपका स्पेसिफिक नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता है, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है दैट इट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन. एक से ज़्यादा की अगर मैं बात कर रही हूँ, राइट, दैट इज प्यूरल. बट सिंगुलर हमेशा सिर्फ एक के बारे में बात करेगा, ठीक है. हेयर स्पेसिफिक नंबर क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन बुक. बट दीज बॉयज कैन रिप्रेजेंट 2, कैन रिप्रेजेंट 10, कैन रिप्रेजेंट 50, राइट. तो प्यूरल कभी भी स्पेसिफिक नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता है, बस ये बताता है कि एक से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है, दो या दो से ज़्यादा है वो चीज़. क्लियर है? पहला क्या है, या तो आप उसमें एस ऐड कर दो, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल. व्हाट इफ देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच एंड इन एस, ठीक है. There are certain nouns which either end in s or ch or sh. उसको आप किस तरीके से प्योर, इवन x, ठीक है, उसको आप किस तरीके से प्यूरल बनाओगे, है ना. इसके लिए एक चीज़ याद रखना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से क्लास, सिंगुलर क्या है? क्लास. प्यूरल क्या हो जाता है क्लास का? क्लासेस, ठीक है. If I say brush, how am I going to make it a plural? Simply brushes, ठीक है. If I say box, plural किस तरीके से बनता है? This one is singular and this is plural, ठीक है. इसका प्यूरल कैसे बनता है? boxes, है ना. So if there is a singular noun which either ends in s or sh या फिर x या फिर ch, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ch का एक एग्जाम्पल हो गया ब्रांच, इट इज एंडिंग इन ch. कैसे मैं बना रही हूँ उसके प्यूरल? es से, है ना. कॉमन क्या है इसमें? सो वेन एवर देर इज अ नाउन विच एंड्स इन s और ch, sh और x, ये सॉफ्ट साउंड होते हैं. ब्रांच, है ना, सॉफ्ट साउंड, राइट. तो उसमें आप क्या ऐड करोगे? यू विल ऐड ई एस टू इट. सिर्फ हर उसमें देखो ना, s में ऐड हो रहा है, मैंने ई एस ऐड कर दिया. sh में हो रहा है, आई हैव अगेन एडेड ई एस. x, यहाँ पे भी x. ch में ऐड हो रहा है, ई एस, ठीक है. सो इफ देयर इज एनी नाउन विच एंड इन s, ch, sh और x, उसमें मैं ई एस ऐड करके उसका प्यूरल बनाऊंगी, ठीक है. अब ये रूल क्यों ज़रूरी हो जाते हैं? क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है आपको सबके प्यूरल पता हो, है ना. बट अगर आपको रूल पता है तब भी तो आप चेंज कर सकते हो, राइट. इफ़ यू नो द रूल यू कैन सिंपली चेंज इट, राइट. सो यू मस्ट नो द रूल. क्योंकि आपके फिलिप्स टाइप के क्वेश्चंस आए हैं RIMC में जहाँ पे आपको प्यूरल फॉर्म यूज़ करना है. अनलेस यू नो द रूल, अनलेस यू नो द वर्ड, यू कैन डू इट. बट अगर आपको रूल पता है तो आप कोई भी वर्ड है आप कर्ट बन का प्यूरल बना सकते हो, ठीक है. अब देखो, पर एक चीज़ आपने वापस नोटिस की होगी, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन है. क्लियर. एक और जो आपको रूल पता होना चाहिए, इफ़ देर इज एनी वर्ड विच एंड्स इन ओ, ठीक है, कोई एक नाउन है जो आपको ओ में एंड कर रहा है, if there is a noun which end in o में एंड कर रहे हैं, वहां पे आप क्या करोगे? चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. मैंगो. मैंगो का प्यूरल कैसे बनाओगे? मैंगोस, है ना.
मैंगो का अब प्यूरल कैसे बनाते हो? मैंगोज. और इफ आई से potato, potatoes, yes, है ना. अगर कोई वर्ड है ends in o, आप उसमें क्या ऐड करोगे? es ऐड करोगे. क्लियर है चीज? तो अगर इसका आपका प्यूरल बनाना है आप उसमें es ऐड कर दोगे. ऑलराइट. एक और रूल जो बेसिक पता होना चाहिए. अच्छा, एक y वाला रूल आपको पता होना चाहिए, राइट? इफ देर इज अ नाउन which ending in what? y. देखो y से तो एंड हो रहा है, लेकिन इट इज जस्ट उसके पहले, इट इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट और ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है आपके? दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर योर वोवल्स. उसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. ठीक है. तो अगर ऐसा कोई एक वर्ड है जो आपका क्या है, ओ से तो एंड हो रहा है, सॉरी वाई में तो एंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपका क्या है? एक आपका कॉन्सोनेंट है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बेबी, वाई में एंड हो रहा है ना, उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो क्या बन जाएगा इसका? बेबीज. तो आप उसमें क्या ऐड करते हो? यू ऐड आई ई एस टू इट, राइट? इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल किया था बॉय. नाउ even though it ends in y but it is preceded by what? o is what? vowel. तभी वहाँ पे हम i e s नहीं लगाते, हम सिर्फ s ऐड करके उसका प्यूरल बना देते हैं, राइट? सो दिस वाज द few rules to convert a noun from singular to plural form. बहुत ज़रूरी है ये याद करना, बिकॉज कई बार आपके ऐसे वर्ड होंगे जिनका आपको पता नहीं है किस तरीके से आप चेंज करोगे, बट इफ़ यू नो द रूल यू कैन सिंपली चेंज इट, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. वी हैव कवर्ड नाउन, और नाउन में हमने क्या पढ़ा है? नंबर के बेसिस पे आप कैसे क्लासीफाई करते हो, और क्या कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको सिंगुलर से प्यूरल बनाने में हेल्प करेगा. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू.